Good morning, class 9th. We have discussed about economic and non-economic activities in our previous session. Now today, let's continue our chapter. Further, economic activities can be of two types. First, market activities, and second is non-market activities. Now, what are market activities? These market activities are performed for remuneration. Remuneration means कोई भी रिवॉर्ड जैसे सैलरी पेमेंट मिलता है या कोई भी प्रॉफिट मिलता है. फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ फॉर सेलिंग क्रॉप प्रोड्यूस्ड. Okay, agricultural activities are undertaken by a farmer for selling crop produce and to earn some money. Okay, so these are market activities that he has sold out his crop to earn money. But some non-market activities like activities which are carried out for self consumption. अब ये जो कोई जो फार्मर है वो प्रोड्यूस सेल कर रहा है, बट वन हु इज़ नॉट सेलिंग हिज प्रोड्यूस एंड कीपिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के यूज़ के लिए रख रहा है. ओके, और प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि ऐसा कुछ भी वो अपने खुद के लिए वो यूज़ कर रहा है. अगर किचन गार्डन में कोई वेजिटेबल और वो कुछ ग्रो करता है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दैट इज़ अ नॉन मार्केट एक्टिविटी. ओके, नाउ ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज. बिकॉज जब ह्यूमन रिसोर्स कब ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट होता है? व्हेन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर इज गिवन. ओके, सो skills, okay, he becomes more skillful and he becomes more productive and he becomes knowledgeable. So human capital क्या है? It is the stock of skill and productive knowledge embodied in human beings. क्योंकि जो एजुकेशन के बाद में, जो ट्रेनिंग के बाद में और मेडिकल केयर के बाद में उनमें जो नॉलेज आ जाती है, स्किल आ जाती है और वो जो ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं, दैट converts them from human resource to human capital. Okay, population means human beings become human capital when it is provided with better education, training and healthcare facilities. Now let us see that how human capital formation occurs in a country. ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता कैसे एक कंट्री में? हम जैसे दो कंट्री का एग्जांपल लें. वन इज डेवलप्ड लाइक अमेरिका, ओके, और लाइक रशिया, ओके, एंड अनदर वन इज अंडर डेवलप्ड लाइक मेनी अफ्रीकन कंट्रीज और मेनी लाइक साउथ एशियन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, और वी कैन से दीज आर मीन्स डेवलपिंग, नॉट डेवलप्ड. ठीक है, वो अभी डेवलप हो रही हैं पर पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है. ठीक है, सो ये कैसे होता है? ये क्योंकि वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज़्यादा स्किलफुल है, ज़्यादा नॉलेजेबल है. अगर इंडिया का भी कोई ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा ट्रेनिंग गेन कर लेता है, देन ही अप्रोचेस एनी फॉरेन कंट्रीज. सो how human capital formation occurs in a country when the existing human resource is further developed by spending on making the workforce more educated and healthy. It is called human capital formation. People as a resource is a way of referring to a country's workforce in terms of their existing skills and abilities. जो उनकी प्रेजेंट स्किल्स और एबिलिटीज़ है वो कंट्री की वर्क फोर्स है. ओके, विच इज़ वर्किंग डे एंड नाइट टू बिकम मोर प्रोडक्टिव. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट. चिल्ड्रन, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन केयरफुली. द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी and skill formation acquired by the
people of country. Now what literacy rate, life expectancy, and all these terms are coming. Okay, we'll be discussing now only. Now what education is? Education is not only gaining that bookish knowledge. Education is more than that. Education goes till the end of the life. Okay, education is the most important component of human resource development because it helps individual to make better use of economic opportunities available before him. जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो उसके सामने हैं, वो उनको और बेटर यूज़ कर सकता है, उनसे और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो कर सकता है. It contributes towards the growth of society and also enhances the national income, cultural richness and efficiency of governance. अब एजुकेशन कैसे सोसाइटी की ग्रोथ करता है या कैसे नेशनल इनकम को एनहांस करता है? बिकॉज व्हेन अ ह्यूमन इज एजुकेटेड, ओके, ही make others educated, okay, the whole society becomes more skillful and becomes more productive. They become more able to earn money, and thus when their income grow, the country's income also grow. Okay, and cultural richness, because he include all other culture in his culture. Like we are gaining good things of Western culture, okay, and we know the difference between our culture and the other countries' culture. So ultimately education enable a person to opt all the good things of other cultures. Okay, and efficiency of governance also, because government also become more skillful and more able through education. Measures like Sarva Shiksha Abhiyan, Midday Meal Scheme and Right to Education Act have been introduced to push education at the farthest एंड. और एजुकेशन बढ़ाने के लिए ये सारे ये सारे अभियान और ये सारे मिड डे मील स्कीम और ये सब को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? सो दैट एजुकेशन कैन बी इन्हांस्ड इन आवर कंट्री. नाउ हेल्थ क्या है? अब हेल्थ क्यों एक इम्पॉर्टेंट इशू है? सो दैट human resource can be converted into human capital. Why? Because human health is another very important component of human resource development. Efficiency of workers largely depends on their health. Okay, if a person is healthy, he would give his maximum output in his working hour, resulting growth of economy. Okay, otherwise he won't be able to work for prescribed working hours for him. Like a person is working for 8 hours, but 10 hours or 12 hours are mandatory to work. Then if he is unhealthy, he won't be able to work for full time. Okay, and it would not result in growth of the economy. Okay, it would stop him to contribute in economy. So for example, Japan is such a country which lacks natural resources, जहाँ पे कि natural resources बहुत कम है, but due to its investment on human resource in the field of education and health, it is one of the top developed countries. जापान में natural resources बहुत कम है, फिर भी वो
डेवलप कंट्रीज़ में आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है अपना इन्वेस्टमेंट किया है एजुकेशन और हेल्थ पे। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीज़न देयर वाज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन men and women which is now on the verge of change। जो हमारी हिस्टोरिकल और जो कल्चर हमारा ऐसा था कि विमेन को कम सैलरी मिलती थी, या विमेन लेबर है तो उसको कम सैलरी मिलेगी इन कंपैरिजन ऑफ मेन, ओके, मेल लेबर। बट नाउ slowly this difference is totally change, okay, on the verge of change होने लगा है धीरे धीरे, okay, and now women are also considered as equal as men। Now what is literacy rate? Literacy rate means the percentage of a population of an area at a particular time aged 7 years or above who can read and write। 7 years और उससे ज़्यादा जो भी हैं जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, those who can read and write, okay, तो उसका परसेंटेज है, ओके, वो लिटरेसी रेट है। नाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है? इट इज़ द एवरेज पीरियड दैट अ पर्सन में एक्सपेक्ट टू लिव। मीन्स जैसे इंडिया में, जापान में सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ओके, जैसे इंडिया में ऑलमोस्ट 60 to 65 के बीच में है। 60 पहले ये बहुत कम थी बिकॉज जो हमारी डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा थी। बट अब धीरे धीरे एवरेज पीरियड दैट अ पर्सन में एक्सपेक्ट टू लिव, कि हाँ एवरेज जो पर्सन की जो एज है वो इतनी तो होती ही है। इससे पहले जनरली बहुत ज़्यादा मीन 60 और 62 तो एवरेज रेट, एवरेज एज होती है, ओके। इन इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट बर्थ रेट क्या है? बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लिव बेबीज born per 1000 of population during a year। 1000 बच्चों में कितने बच्चे जो हैं वो जिंदा रहते हैं, ओके। देन डेथ रेट और mortality rate is the number of people die per 1000 of population during a year, okay। then infant mortality rate, infant mortality rate क्या होगी? is the number of deaths per 1000 live births of children under 1 year age, ठीक है। 1 year age के चिल्ड्रन में कितने बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मर जाते हैं, दैट इज चाइल्ड और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके। नाउ let us have a look at the division of our Indian economy। इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, ओके। हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 types of activities and 3 types of sectors। These are further divided: primary, secondary and tertiary। प्राइमरी सेक्टर क्या है? It includes those activities which are directly related to extraction of natural resources like mining, okay, like that quarrying means जो खुदाई करते हैं, okay, खनन का काम करते हैं, so or like agriculture। so these all are primary activities, primary sector। now secondary sector, it includes those activities which extracts its raw material from primary sector and modify them into other useful products। अब जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी मटेरियल जो प्रोड्यूस हुआ है, सपोज एग्रीकल्चर से, सपोज शुगर प्रोड्यूस हुई है, ना शुगर केन प्रोड्यूस हुआ है, शुगर केन से जब शुगर प्रोड्यूस होती है, अब शुगर केन तो है शुगर केन जो है वो एक प्राइमरी सेक्टर का एक प्रोडक्ट है। बट शुगर केन से जब शुगर बनती है तो वो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि शुगर केन से शुगर जो है वो यहाँ पे पास ऑन होती है। शुगर केन बहुत सारी स्टेजेस में उसको
उसको प्रोसेस करके और उससे शुगर बनाई जाती है. तो शुगर केन इज़ द प्राइमरी activity, primary product, whereas sugar is the secondary product. Okay, secondary sector's product. So it includes all those activities which extracts its raw material from primary sector and modify them into other useful products. ठीक है. जैसे क्रूड ऑयल जो निकल रहा है ना, क्रूड ऑयल निकल रहा है वो एक प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है. बट जब क्रूड ऑयल को उसको एनालाइज करके उसको पेट्रोलियम, डीजल और बहुत सारा जो उसको रिफाइनरीज उसको रिफाइन किया जा रहा है, तो उसकी जो रिफाइनरी है वो सेकेंडरी सेक्टर में काउंट होगी. ओके. एंड द थर्ड इज टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. Sector, it is also called service sector as it provides the services to above two sectors and help them to flourish. अब जैसे इन दोनों सेक्टर्स को हेल्प करता है और उनको फ्लरिश करने में हेल्प करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. अब ट्रांसपोर्टेशन ये प्राइमरी सेक्टर को भी हेल्प कर रहा है और सेकेंडरी सेक्टर को भी हेल्प कर रहा है. क्यों? क्योंकि जो जैसे हम शुगर केन का एग्जांपल है, शुगर केन जब तक वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो फैक्ट्रीज तक नहीं पहुंचता तो वो प्रोसेस नहीं हो सकता. ठीक है. तो ये ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस हुई. इसी तरह से बैंकिंग. ओके. ये बैंकिंग है या एडवर्टाइजिंग है या जैसे गोडाउन है. ठीक है. वेयर हाउसिंग है. ये सारा क्या है? ये सारा टर्शरी सेक्टर में आएगा. ओके. एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, ये सारे क्या हैं? ये सारा प्राइमरी सेक्टर है. सेकेंडरी सेक्टर, फॉर एग्जांपल शुगर फ्रॉम शुगर केन और मैन्युफैक्चरिंग स्टील फ्रॉम रॉ आयरन. रॉ आयरन इज अ activity, a primary sector's activity, but from making steel from raw iron is a secondary sector's activity. Okay. और टर्शरी में क्या आएंगे? बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन. ओके. कम्युनिकेशन मीन्स जो भी मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन जो भी हैं वो सारा कम्युनिकेशन जिससे कि कम्युनिकेट कर रहा है. ठीक है. सो फॉर टुडे दिस मच ओनली. Okay, thank you children. Have a nice day.